कौन आ रहे क्या? ओके चलो, ऑल ऑफ यू टेक सम नंबर. एवरीथिंग इज रिवीजन. बैग तो रख के गया था, दूसरी तरफ बैग बल चल जाता आईपॉड के तो भाई. चलो, ऑल ऑफ यू एक सम नंबर. एक पीस मिल का करते हैं उसके बाद. एक सम नंबर 18. All of you take sum number 18. Age 265. 265, sum number 18. The last class we did piecemeal distribution, remember? Two methods we learned. What are the two methods? One was excess capital and one was maximum loss. अतरंगी थोड़ा मैक्सिमम लॉस है. सर वेव खाली ऊपर सेट कर दो. तुम लोग में 20 में बहुत लगता है. सब पागल के जैसा कोई 16 कभी 17 कभी 20 पे पड़ा रहता है. वो अंधे के जैसा दिखता नहीं होगा. बोलता है 30 का गया 30 चलो बराबर सेटिंग पे रहता है. खाली ऑन करके रख देने का उधर. टेम्परेचर चेक करके 16 17 20 फुल फैन पे रख दिया तो फ्रीज हो जाएगा. हाँ 29 भी नहीं रखने का. वो हीटर का काम. चलो सी नाउ सम नंबर 18. 265. Draw the statement of distribution. Sum number 18. Modeling. X, Y, Z are partners sharing profits and losses as 3:1. 265. चलो बताओ, मैक्सिमम लॉस में एक्सटर्नल लायबिलिटी इज इट डिफरेंट इन एनी वे? मैक्सिमम लॉस में एक्सटर्नल लायबिलिटी जरा सा भी अलग है कि सेम ही है? सेम ही है. वी हैव टू जस्ट प्रीपे द एक्सटर्नल लायबिलिटीज, राइट?
यहाँ पे दो है, कैश अपना स्पाउस लोन और पार्टनर्स लोन. स्पाउस मतलब हस्बैंड वाइफ का लोन है एंड पार्टनर्स लोन. टेल मी व्हाट विल यू पे ऑफ फर्स्ट? स्पाउस लोन एंड देन your partner's loan and then your capital, right? Pay attention. Do you have any cash right now? The assets were realized in the order listed above. So start with first installment. First installment कितना मिला? 2000. What will I do with this 2000? Come on. क्या करेगा 2000 से? Spouse loan you try to pay off less payment to spouse loan. Full 2000 you pay off. What is the balance? One thousand, 2000, 10,600, 7,000 and 8,400. What do we do next? There's no realization expense specified, so assume it is nil, right? Aisa khatam. What will do next? Take the second installment, right? Second installment कितने का मिलेगा? Assets were realized in the same order. 3,000. Who should I pay now? I can pay both. First spouse loan and then partner's loan. बराबर? It's not in the ratio, correct? पहले spouse loan फिर partner loan. Same line पे लिख सकते हो. Pay spouse loan and partner loan. कितना होगा ये? 3000 मिला के इसको 1000 और इसको 2000. What's your balance now? This is again nil. 10,600, 7,000 and 8,400. Sorry. What next? Third installment. Money over, right? पैसा खत्म तो go for third installment. Third installment is worth 2,200. Now am I going to directly pay any of the capitals? Do I know which one is having excess capital or anything like that? So I'll go for maximum loss. How do we calculate that maximum loss? Anyone remembers? Maximum loss is what? अपने को कितना देना है? ऐसे समझने का कि last installment है. तो इतना पैसा चुकाना है और इतना ही है अपने पास. तो जो बचा वो लॉस, राइट? तो चुकाने का कितना है अपना? 10,600, 17,600 कितना है? 26,000. 26,000 minus 26,000 minus 2,200. 26,000 minus 2,200. 26,000 minus 2,200 is 23,800. 26,000 minus 2,200 is 23,800. Is 23,800. This 23,800 we have to divide in which ratio? Profit sharing ratio. PSR में divide कर दो 23,800 करो कितना आ रहा है? 11,900, 7,933, 3,966. Okay. 11,900, 7,933 and 3,967. Now focus. Look at the board. Look at the board. Are we getting negative amounts anywhere? Yes. These two columns are negative, I think. 13. This is 1,300 and this is 933. 933. They are both negative and this is positive at 4,433. 4,433. So now what should happen? These two have become insolvent. They are not really insolvent, notionally insolvent. This is notional loss. तो इन दोनों का insolvency कौन bear करेगा? Z. Z. So इधर लिखने का insolvency, ये बैलेंस है आपका. Insolvency of X and Y will be borne by Z. Insolvency of X and Y will be borne by Z. मतलब ये 1300 नेगेटिव का इधर पॉजिटिव हो जाएगा, 933 पॉजिटिव, और इन दोनों का एडिशन कितना होता है? 2233. ये कौन बेयर करने वाला है? Z. Is this clear? समझ में आया इंसॉल्वेंसी?
नेगेटिव आ रहा था, इसके लिए मैंने यहाँ पे बैलेंस लिख के इंसॉल्वेंसी शेयर किया. व्हाट इफ सबका पॉजिटिव होता शेयर. तो पे ऑफ. सबका पॉजिटिव आता तो उतना पैसा पे ऑफ, सीधा सीधा पे ऑफ. बराबर है? याद आया? नेगेटिव आ रहा है तो इंसॉल्वेंसी शेयर किया. अभी क्या नेगेटिव, तो ये नेगेटिव समझ में आया. बैलेंस नेगेटिव, बैलेंस नेगेटिव आया तो इंसॉल्वेंसी बेयर हुआ. बैलेंस पॉजिटिव है तो सीधा पे ऑफ. अभी इन दोनों का तो नील है. अभी इसका कितना होगा? 4433 माइनस 2233, 2200 ही आपका कैश है. ये ऑटोमेटिकली इतना ही मिलेगा. इसको पे ऑफ कर दो. तो दिस इज पे टू जेड, पे टू जेड 2200 पे ऑफ कर दो. अब जाके वापस बैलेंस ढूंढना है. अब बैलेंस कितना होगा? डिड वी पे वन अ सिंगल रुपी टू एक्स? डिड वी पे अ सिंगल रुपी टू वाई? नो. तो x will be same 10,600. y also will be same 7,000. And z will now become 6,200. Is this clear? So this is how it is to be done. मैक्सिमम लॉस करो. नेगेटिव आ रहा है तो डेफिशिएंसी शेयर करवाओ और बाकी पे करो. अगर नेगेटिव नहीं आ रहा है तो उतना पे करो और आगे बढ़ो. Then you go for last installment, fourth installment, repeat the same process. Fourth installment कितने का मिला है आपको? I think 5,000. 5,000 का मिला है. क्या करोगे अभी? 5,000 का इंस्टॉलमेंट मिला है. किसको पे ऑफ करना है? We don't know, so we calculate what? Maximum loss. Maximum loss is nothing but what? ये टोटल कितना देना है अभी आपको? 23.8. 23,800 minus 5,000. 18,800 is the maximum loss possible. Divided in PSR. 18,800. Maximum loss कैसे मिला समझा बेटा? Total capital minus the realization. Total capital minus the realization is maximum loss. 18,800 is the ratio of क्या है? 532? 3 to 1. 3 to 1. करो. 9,400. 9,400. 6,267. 6,267. 3,133. 3,133. Again check. Is any of the partner getting any negative amount? No. है कुछ negative? No. चेक कर लो बराबर से. है? नहीं है? No negative, that means वो बैलेंस 5 ही आएगा जो आपको पे ऑफ कर देना है. तो पे ऑफ इधर सीधा पे ऑफ, पे टू एक्स वाई जेड या पे टू पार्टनर्स कैपिटल कितना पे ऑफ करेंगे? सीधा 5,000. इधर टोटल 5 ही मिलेगा आपको ऑटोमेटिकली. 1,200. 800 है ना? 1,200. This is 1,200. 733. हाँ 733. 3067. 3067. Pay off this much and then get the final balance. Now no more installments, so this is called as loss on realization. See, out of 10,600 you paid 1,200, so this is 9,400. 6,267. 6,267. 3,133. 313. And this should be in the ratio of 3 to 1. Automatically बैठेगा. तो लास्ट वाला मैक्सिमम लॉस था, उसके बाद बैलेंस लिखने के बाद भी पे ऑफ कर सकते हैं. मैक्सिमम लॉस था, बैलेंस लिखा 1200. उसके बाद बैलेंस लेगा फिर पे ऑफ किया. मतलब ऐसे बोल रहा हूँ. एक स्टेप एक्स्ट्रा करेंगे. हाँ. एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा. सेम फिगर रिपीट करो. चलेगा. That is all. समझ में आया बेटा? याद आया मैक्सिमम लॉस? This was, I think, sum number 8. Last sum number 19. 19th sum tried on your own. 19th sum खुद से कर लो. और 19th sum में लास्ट में करेक्शन करना, उधर लिखो including bad debts recovery of 200, including bad debts including excess of realization 200, including excess of realization 200, including excess of realization 200. What? 1,000 प्लस कर दिया. 1,000 प्लस कर दिया. कर कैलकुलेशन ही है, स्टेप्स तो वही है. और बाय चांस इधर एक इंस्टॉलमेंट होता तो वापस कर. 2 जन शेयर करते. कैपिटल रेशियो.
कैपिटल रेशियो, ये बैलेंस कैपिटल रेशियो। कौन सा कैपिटल रेशियो? बैलेंस जो यहाँ पे दिख रहा है कैपिटल, वही कैपिटल रेशियो, ये कैपिटल। मतलब यहाँ पे समझो ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। इट वुड हैव बीन 933:443 वो रेशियो, 933:443 रेशियो पॉइंट में आ सकता है, वैसे ही रख के डिवाइड करके कर ले। कैलसी है ना आपके पास? प्रोविजन ओडी में कैश में से 5,600 का provision तो पहले इंस्टॉलमेंट ले लो। एक मिनट देखो, आपके पास कैश कितना है? 500 और प्रोविजन फॉर 600 आरडीडी कितना है? 600। तो पहले क्या करने का? टेक द इंस्टॉलमेंट एंड देन क्रिएट प्रोविजन। इज इट क्लियर? कैश 500 है और प्रोविजन बनाने का 600। कैश है क्या उतना? साइड पे रखने के लिए कैश ही नहीं है अपने पास। गॉट इट? तो क्या करने का? कैश 500 पहले फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ले लो, फिर प्रोविजन क्रिएट करो। हाँ साथ में और फिर बैलेंस करके पे ऑफ करो। यहाँ पे एज लोन भी थर्ड पार्टी लायबिलिटी है। हाँ, एज लोन इज पार्टनर्स लोन, एक्स लोन कर दो उसको। तो एज लोन को एक्स लोन कर दो। वैसे भी वो क्रेडिटर्स के बाद ही करना है। एज लोन को एक्स लोन कर दो। एज लोन इज एक्स लोन, करेक्शन कर दो। एज लोन का एक्स लोन कर दो। हाँ थर्ड पार्टी भी कर दो कि क्रेडिटर्स के बाद ही होगा। नहीं, 1:2 अनसेक्योर्ड। स्पाउस लोन का, स्पाउस लोन की जगह क्रेडिटर एक्स लोन एक्स वाई। एज लोन का जस्ट मेक इट एक्स लोन। सॉल्व फास्ट। पॉइंट में आएगा आंसर, थोड़ा केयरफुल रहना कैलकुलेशंस में। प्रोसेस वही रिपीट करना है आपको। पहले इंस्टॉलमेंट लो, फिर प्रोविजन क्रिएट। कैश 500 है, प्रोविजन 600 है, तो नॉट इनफ ऑफ कैश। तो पहले इंस्टॉलमेंट ले लो, फिर प्रोविजन बनाओ। रियलाइजेशन एक्सपेंस का 600 माइनस करो। 1900 आप पे करोगे पहले पार्ट में, नहीं, हाँ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से 1900 आप पे ऑफ कर पाओगे। बराबर हो गया? फाइनल आंसर रेशियो में आवे છે કે નહીં? should be in the ratio of 5:3:2. શું છે? બોલો 5:3:2 માં ના લાવજો। $1900 is the balance which you pay off। हो गया? टेस्ट का पैटर्न डाल दिया है। ओके, 60 मार्क्स का है, 50 मार्क्स का सम, 10 मार्क्स टू ऑफ। नहीं, बैलेंस शीट टेस्ट में नहीं है। Sunday's test doesn't have balance sheet। भेजा ना? 10 मार्क्स ईच। खाली राइट्स एंड बोनसेस 5। तो सर 50 मार्क्स ही हुआ। 10 मार्क्स ट्रू और फॉल्स। बोनस, राइट्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, पीसमेल, ट्रू और फॉल्स। 10 and 10, sorry, bonus and rights are also 10। सब 10, all question 10। bonus 10, rights 10, redemption of preference 10, redemption of debenture 10, piecemeal 10 and true or false 10।
हाँ एक्स्ट्रा पहले क्रेडिटर फिर एक्स लोन फिर एबीसी में मैक्सिमम लॉस। पहले 2900 पे आओ फिर इंस्टॉल, पहले खत्म करो एग्जिस्टिंग व्हाट हाँ कर सकते हो, अलग अलग किया तो भी रियलाइजेशन एक्सपेंस और प्रोविजन अलग से बनाए तो बेटर है, बट यू कैन जो मैक्सिमम लॉस है रेशियो में इंसॉल्वेंसी शेयर मैक्सिमम लॉस में जो अमाउंट माइनस कर रहा है। एक मिनट मैक्सिमम लॉस माइनस करेगा, फिर जो बैलेंस आएगा वो देखने का, पॉजिटिव आ रहा है तो सीधा पे ऑफ, नेगेटिव आ रहा है तो एक नेगेटिव है तो बाकी दो हाँ जो कैपिटल है ना बचे हुए वही रेशियो में शेयर करेंगे। यही एक का नेगेटिव दो का पॉजिटिव है ना, वो रेशियो। क्या आ रहा है अमाउंट तेरे को? नेगेटिव कितना आया? सर उधर चेंज कर लो ना उधर। नेगेटिव 5600 हाँ और पॉजिटिव 6040 एंड हाँ तो 604:136 ये रेशियो में जाएगा, 604:136 का रेशियो में जाएगा। पर भाई दो ही एक ही पॉजिटिव आ रहा है सर। हाँ जो भी है सिंप्लीफाई करके देखा। 151:34 151:34 नहीं ओरिजिनल कैपिटल नहीं, वो चेंज हो चुका है एट द टाइम ऑफ इंसॉल्वेंसी। ये कैपिटल रेशियो में जाएगा डेफिशिएंसी गाइस। 151:34 60401360 ये रेशियो ओरिजिनल कैपिटल नहीं, अभी एट प्रेजेंट जो कैपिटल है ना इनका वो रेशियो। बैलेंस देखने के बाद हाँ एक ही नेगेटिव आ रहा है। हाँ तो इसका डेफिशिएंसी ये दोनों बेयर का इन दिस रेशियो 604:136 which is 151:30। तो पहले फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लेने का फिर प्रोविजन पाना। सर वो कौन सा रेशियो है? 604:136 कैपिटल रेशियो एग्जिस्टिंग अभी का कैपिटल, ओरिजिनल नहीं अभी का। सर वो इसका नोट बनाना पड़ेगा सर। सीधा ये रेशियो लो और डिवाइड करो। हाँ
ये किया किसी ने डिवाइड 5600 को 604 136 में तो कितना आ रहा है 457 ओके तो इससे माइनस कर दो और ये नलीफाई हो जाएगा और ये कितना आ रहा है 1470 एंड 331 ये टोटल आपका इंस्टॉलमेंट जो रहेगा ना बचा हुआ वो 1800 इनको पे ऑफ करना है इसको 1469 और इसको 330 यही रेशियो डायरेक्ट भी करो कैलसी आपको वही तो बोला आपको कैलकुलेटर है तो यही रेशियो ले लो सीधा 6040:1360 करो तो भी चलेगा या 604:136 करो तो भी चलेगा या और सिंपलीफाई करोगे तो 151:34 सब एक ही है आंसर एक ही आएगा रेशियो में तो कितना भी सिंपलीफाई करो या मल्टीप्लाई करो योर आंसर इज सेम 1469330 टोटल 1800 है ना पे ऑफ करके ये डेफिशिएंसी शेयर किया कौन से रेशियो में किया कैपिटल दैट इज दिस ओनली 151:34 is what this one 6040 हाँ 4571 and 1029 इसमें ऐड हो जाएगा इसमें लेस हो जाएगा और फिर जो मिला वो पे ऑफ कर ये ना ये दोनों को ऐड करो तो 1800 होएगा वो 1800 पे ऑफ कर दो हाँ बोलो Insolvency of X will be shared by Y and Z in वो ratio. कैपिटल रेशियो In capital ratio. और वो लिखना भी है ratio. हमेशा कैपिटल रेशियो में ही होता है डेफिशिएंसी सीए एग्जाम गार्डनर बोल रहे उधर 12 में बीएसआर में करते सॉल्वेंट उधर भी बीएसआर में करते वक्त ये अज्यूम करते थे कि कैपिटल रेशियो सेम एज बीएसआर या एग्रीमेंट में दिया हुआ है बीएसआर इसके वो लोग ने एग्रीमेंट में चेंज करके बीएसआर किया हुआ है ऐसा अजम्पशन है अपना वहां पे 12 प्रैक्टिकली हमेशा कैपिटल रेशियो में ही जाता है डेफिशिएंसी इसके बाद 1800 रुपया आपने पे ऑफ करने के बाद क्या आ रहा है बैलेंस 16,751 इसका 16,000 और इसका 7 अभी वापस नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट लो फिर मैक्सिमम लॉस करो 1 रुपया प्लस माइनस चलेगा नॉट टू वरी 1 रुपया ऊपर नीचे हुआ तो नॉट टू वरी राउंड ऑफ 1 रुपया प्लस माइनस इज फाइन नॉट टू वरी राउंड ऑफ करके करो चलेगा क्या हुआ नहीं समझा जी यार फोर्थ इंस्टॉलमेंट में वो जो कैपिटल बच गया है क्या रेशियो है 75 ऐसा सब है ऐसा कर सकते हैं दोनों को डिवाइड कर दिया 1:8 अभी ये 6671 is to 4 पूरा ही ले लेना कैसी है तुम्हारे पास डायरेक्ट डिवाइड 1.81:1 हाँ हाँ वो जो अमाउंट है 1469331 उसमें P to Y and Z ऐसा लिखना है P2 Y and Z 1469 and 331 तो वापस
सर आता 15 में ऑप्शन है 5 हमारा तो बताइए आप अभी 5,600 will be divided in the ratio of this 6040. इन दोनों का रेशियो इन दोनों का रेशियो नीचे वाले Max loss is profit. PSR में रहता है। हाँ फाइनल हो गया तेरा। Anyone has completed पूरा? वो जो फाइनल आंसर है ना वो 532 में होना चाहिए। वो है हाँ तो राइट है। ये कैपिटल कैपिटल डेफिशिएंसी कैपिटल रेशियो सीए दाखिल बोला 12 की नहीं पीएस कैपिटल मैक्स लॉस के बाद जो कैपिटल आया ना वो मैक्स लॉस किधर है अभी कैपिटल किधर है हाँ तो 6671 is to 242 वो मैक्स लॉस का रेशियो वो बीएसआर में जाता है वो कैपिटल में जाता लेकिन मैक्स लॉस के बाद कैपिटल चेंज हो रहा है रीसेंट कैपिटल में तो क्या हुआ दूसरे वाले में भी वापस एक नेगेटिव आ रहा है इसके बाद वाले में भी एक नेगेटिव आ रहा है क्या आ रहा है वो नेगेटिव और पॉजिटिव अमाउंट 2100 नेगेटिव है कितना है डिवाइड होगा 667 नहीं नहीं 667 ओके 667 एंड 6671 is to ये देखो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का ये आ रहा है डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद मैक्स लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ये बैलेंस आ रहा है वापस एक का नेगेटिव है दो का पॉजिटिव है तो इसका डेफिशिएंसी विल बी शेयर्ड बाय दीस टू इन विच रेशियो दिस रेशियो 6671 is to 2429 तो कितना आया 15 and 561 अभी ये तो नील हो जाएगा इसका जो भी है ये पे ऑफ कर देना है पे टू वाई एंड जेड जो भी कैश है कितना आ रहा है ये 7000 है ना 5 हाँ वो 5132 एंड 7 8 ये टोटल करोगे तो 7000 आएगा 100 रुपया प्लस माइनस चलेगा ये रेशियो में करना है 6671 is to 2429 532 में आना चाहिए फाइनल हाँ
पॉइंट में था वो जाएगा था ना, डिविजिबल था, इसके लिए सिंपलीफाई किया, ये डिविजिबल नहीं है। आपको टेक्निक समझ में आया? नेगेटिव आ रहा है तो कैपिटल रेशियो में शेयर करो और फिर पे ऑफ करो। नहीं आ रहा है नेगेटिव, आई थिंक लास्ट इंस्टॉलमेंट में कुछ नेगेटिव नहीं आ रहा है तो पे ऑफ कर दो। एनीवन हैज गॉट द फाइनल आंसर? एकदम फाइनल रियलाइजेशन 7550 रियलाइजेशन लॉस 7550 बोल तो ये जी 4530 ये 532 में होना चाहिए। फाइनल आंसर इज दिस 75504530 आया? इस क्लिप का कैंसिलेशन निकालो, देखिए फोटो निकाल के ग्रुप पे डालो। All of you then. Theory. ये थोड़ा थोड़ा करेंगे ना वीडियो, लोड मत, उतना लोड मत ले। ये 4 मार्क क्या है उसमें, तू ऐसा सोच के बैठा है क्लास में, वो भी लिख के आएगा तो भी चलेगा, मैं जो बम्बक करेगा अभी वो भी लिख के आएगा तो भी चलेगा। ऑप्शनल दिया लास्ट क्वेश्चन, हाँ बट इन ऑप्शन नॉट कंपल्सरी। वो थियरी नहीं, वो तो पढ़ना है पीछे, चैप्टर के एंड में जो ड्रॉ हो वो तो पढ़ना ही है। पीछे का थियरी है ना, वही रीड किया तो भी चलेगा। और एक बार न्यूज़पेपर के जैसा रीड करो, रटने का जरूरत नहीं। थियरी के पीछे जान मत चलाओ रटने वटने के लिए। अकाउंट्स में थियरी के पीछे डोंट वरी, जस्ट 4 मार्क्स। कौन? चलो मिला आंसर बेटा। डेफिशिएंसी डिफरेंट तो तू खाली डेफिशिएंसी शेयर करे છે, તું કોઈમાં પણ કર, इंटरनली खाली तेरी डेफिशिएंसी अलग रही है, फाइनल आंसर सेम જ આવવાનો। फॉर एग्जांपल तो प्रॉफिट लॉस से फाइनल करना 3:2 कर 1:1 कर, तो कैपिटल बैलेंस ही जाओ बैलेंस शीट। पण
आप कैपिटल रेशियो मस्त है हमेशा रॉन्ग वाली मैथ्स अमाउंट करने वाले एफिशिएंसी अमाउंट बिटवीन Okay, now all of you open the PDF I've shared in the group. Please open the PDF shared on the group. मॉड्यूल का PDF एक शेयर किया है मैंने ओपन दैट फास्ट यू शट अप आधे से ज्यादा टाइम बात करते रहते हैं चलो बेटा ये सबका आंसर आया ये इधर पहुंचा 4th इंस्टॉलमेंट थर्ड पे 5 दो तो किया इधर इंस्टॉलमेंट से सॉल्यूशन भी डाला ग्रुप पे फोटो चलो now open the PDF I've shared on the group हो गया See 11.1 page 11.1 This is the format of the balance sheet. अभी आपने एक T format of balance sheet देखा है 12th स्टैंडर्ड में आपने T format देखा है T format मतलब liability asset horizontal बोलते हैं फिर हमने एक वर्टिकल फॉर्मेट देखा था याद है वर्टिकल स्टेटमेंट्स में अब वो फॉर्मेट पुराना वाला था मैंने तभी पढ़ाते वक्त भी बोला था दैट वाज द ओल्ड फॉर्मेट जो फाइनल फॉर्मेट आपको लर्न करना है ऑफ बैलेंस शीट दैट इज दिस वन यहाँ पे दिया है पेज 11.1 पे you will find the part 1 balance sheet can you see that This is the final format of balance sheet and उसके नीचे revenue statement भी है revenue statement अपने काम का नहीं है we need only the balance sheet मिला आपको अब देखो 11.10 मिला अभी ये बैलेंस शीट फॉर्मेट पूरा रखने की जरूरत नहीं है ये आपको सीए इंटर में आएगा सीए इंटर में वापस फाइनल अकाउंट्स आएगा कंपनी फाइनल अकाउंट तभी पूरा बैलेंस शीट आपको बनाना है ठीक है तो अभी फिलहाल उस बैलेंस शीट में से 3-4 आइटम्स ही अपने काम का है जो अपने चैप्टर्स में लगेगा अपने को अभी वाले चैप्टर्स में आपने देखा होगा बैलेंस शीट के लिए मैंने 2-2 साइड छोड़ने को बोला था आपको राइट तो कौन सा वाला पार्ट्स इंपॉर्टेंट है अभी फाउंडेशन के लिए उस पर फोकस करते हैं तो बैलेंस शीट में मेन हेड्स देखो सबसे पहला इक्विटीज एंड लायबिलिटीज दिख रहा है इक्विटीज एंड लायबिलिटी दैट इज द लायबिलिटी पार्ट एंड नीचे कहीं मिलेगा आपको एसेट्स टोटल के बाद तो दैट इज एक के नीचे एक वर्टिकल फॉर्मेट ही है
इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज एंड एसेट्स। अब इक्विटीज एंड लाइबिलिटी में तीन पार्ट्स है, शेयर होल्डर फंड, वो सेकेंड वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट फॉरगेट दैट। शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, तीन पार्ट मेनली। लाइबिलिटी में तीन। शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या होता है बेटा? शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व्स, ओनर का पैसा, शेयर होल्डर फंड, याद है वर्टिकल में भी किया था। नॉन करंट लाइबिलिटी मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी, व्हाट अ करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म, व्हाट अ नॉन करंट, लॉन्ग टर्म, उतना ही। लाइबिलिटी में तीन है, शेयर होल्डर फंड मतलब खुद का पैसा, बोरोड फंड जो होता था ना, बोरोड फंड, उसको बोलते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी, और करंट लाइबिलिटी हम लोग नीचे माइनस करते थे, मतलब करंट एसेट्स वो ऊपर डाल दिया करंट लाइबिलिटी। दिस इज योर मॉडर्न फॉर्मेट, लेटेस्ट फॉर्मेट एज पर कंपनीज एक्ट 2013, यही फॉलो करता है सब कंपनीज, इंडियन कंपनीज। Then on the asset side you have just two subheads, non-current assets and current assets, very simple. तो याद रखना बहुत आसान है, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, और इधर क्या है, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स क्या है, व्हाट आर करंट एसेट्स, शॉर्ट टर्म, एक साल से कम वाला, तो व्हाट आर नॉन करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म, ओके, लॉन्ग टर्म, एक साल से ज्यादा वाला, उसमें सब प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करंट, अदर नॉन करंट एसेट्स सब आता। अभी सबसे पहला है देखो शेयर होल्डर फंड, उसमें आपको दो सब हेड्स मिलेंगे, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स। समझ में आया वो क्या है? शेयर कैपिटल मतलब प्रेफरेंस इक्विटी, ओनर्स कैपिटल, बराबर है। रिजर्व्स में क्या आएगा, ऑल रिजर्व, जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, आपका सिक्योरिटी प्रीमियम, बराबर है। जितने भी रिजर्व्स आपने पढ़े, पीएनएल अकाउंट, ये सब किसमें आएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, क्लियर है, दो हेड्स। शेयर होल्डर फंड में दो पार्ट, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स। वो जो तीसरा वाला है वो ठीक है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, जो इंपॉर्टेंट नहीं है सर। मैं ये दो शेयर कैपिटल रिजर्व क्या दिमाग में, बाय चांस अगर कॉल इन एरियर रहेगा तो क्या करने का, शेयर कैपिटल से माइनस, और शेयर फोर फीचर रहेगा तो शेयर कैपिटल में, ओके। देन सीधा जाओ करंट, नॉन करंट लायबिलिटीज में। नॉन करंट लायबिलिटी में पहला वाला दिखेगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, कैन यू सी दैट, बस वही इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मतलब लॉन्ग टर्म लोन्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म लोन आ गया, बैंक लोन आ गया, डिबेंचर्स आ गया, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आ गया, याद है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, फ्यूचर का प्रीमियम, लॉस टू प्रीमियम आप करते थे। तो लॉन्ग टर्म लोन्स, बैंक लोन, डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ये सब इसमें जाता है, किसमें, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। नेक्स्ट सीधा आ जाओ, नॉन करंट एसेट्स में कुछ खास नहीं है, सीधा करंट एसेट्स। करंट एसेट में आपको मिलेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, डी वाला। करंट एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मिला। व्हाट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश बैंक, कैश हो गया, बैंक हो गया, एफडी नहीं आता उसमें, लिक्विड फंड्स आ जाता है, ओवरनाइट फंड्स आ जाता है, जिससे तुरंत आपको पैसा मिल जाए। कैश या कैश के जैसा ट्रेजरी बिल्स आ जाता है, शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म लिक्विडेबल। तो एफडी वगैरह है ना, थोड़ा ज्यादा टर्म का रहता है, 1 ईयर से ज्यादा। एफडी आपका जाएगा ऊपर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में, ओके। तो ये वो आपको एफडी वगैरह तो आता नहीं है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में मेनली आपके काम क्या है, कैश और बैंक। और क्या आता है उसमें, लिक्विड फंड, ओवरनाइट फंड, जहाँ पे तुरंत आपको पैसा मिल जाए, 1-2 दिन में। बिल्स रिसीवेबल अदर नॉन करंट, सॉरी अदर करंट एसेट्स में जाता है। बिल्स रिसीवेबल अदर करंट एसेट्स 3-4 महीने का टाइम ड्यूरेशन रहता है। ये जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है ना, 1-2 दिन का, तुरंत आपने क्लिक ऑफ माउस पे आपको पैसा मिल गया सीधा, ओके। सो अपने लिए तो खाली कैश बैंक ही है इधर, लिक्विड फंड, ओवरनाइट फंड ये सब अपने काम का अभी नहीं है। सो दीज आर द 4 आइटम्स ऑफ इंपॉर्टेंस। सबसे पहला शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल, सॉरी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व, दो ही इंपॉर्टेंट है। देन यू हैव नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उसके अंदर सब लोन्स आ गया, डिबेंचर आ गया। फिर आते हैं नीचे की तरफ करंट एसेट्स,
उसके अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश एंड बैंक, बाकी सारे हेड्स देखने की जरूरत नहीं। अब उसके नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको मिलेगा नोट्स टू अकाउंट्स। कैन यू सी दैट? अब ये नोट्स टू अकाउंट्स का मतलब क्या है? हम लोग क्या करते थे फाइनल अकाउंट्स में, हम लोग समझो डेटर लिखा तो डेटर में सब एडजस्टमेंट करके बाद में आउटर कॉलम लिखते थे, फर्नीचर लिखा तो सब एडजस्टमेंट करके फिर आउटर कॉलम, मशीनरी लिखा तो सब एडजस्टमेंट करके आउटर कॉलम। रिमेंबर, कंपनीज क्या करती हैं, वो सारा मसाला फुसाला ऊपर नहीं दिखाती है बैलेंस शीट में, हर एक आइटम का एक नोट बनता है, हर एक आइटम का एक नोट। नीचे स्क्रॉल करोगे तो सबका एक एक नोट दिखेगा आपको। अच्छा, ABCD। हाँ, ABCD, यस। सबसे पहला नोट है शेयर कैपिटल का, तो शेयर कैपिटल के अंदर का मसाला आपको कहाँ दिखाना है? नोट में, और जो फाइनल वैल्यू है वो ऊपर चिपका देनी है बैलेंस शीट में। इसलिए बैलेंस शीट में चेक करोगे ना तो आपको एक नोट्स का कॉलम मिलेगा, नोट नंबर का कॉलम मिलेगा। Yes। वो नोट नंबर में आप लिखोगे सीरियल नंबर ऑफ दैट नोट। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने लिखा शेयर कैपिटल, 1 नंबर लिख दूंगा, नोट नंबर 1, और अमाउंट है 10 लाख। तो व्हाट इज दैट 10 लाख? दैट इज द फाइनल वैल्यू। अब उसका अंदर क्या है, ऑथराइज कितना, पेड अप कितना, फोर फीचर है कि नहीं, कॉल इन एरिया है कि नहीं, प्रेफरेंस शेयर कितना है, इक्विटी शेयर कितना है, वो डिटेल मुझे अगर जाननी है तो मैं नोट लिखूंगा। आप आज घर पे जाके कोई भी एनुअल रिपोर्ट उठा लेना, ऑनलाइन सबका अवेलेबल PDF, कोई भी एक एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करना, आपको किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट मिल जाएगा, ट्राई टू रीड इट। आपको बैलेंस शीट में फाइनल वैल्यूज दिखेंगे और आपको अंदर का मसाला देखना है तो वो कहां मिलेगा? नोट। फॉर एग्जांपल रिजर्व, सेकंड रिजर्व है, रिजर्व में मैंने लिखा नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 या 2, नोट नंबर 2 लिख दिया, रिजर्व में नोट नंबर 2। तो नीचे नोट नंबर 2 में मैं देखूंगा तो रिजर्व की सारी डिटेल दी गई होगी। रिजर्व का वैल्यू समझो 20 लाख, वो तो टोटल रिजर्व हुआ। तो अंदर का मसाला क्या है, उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, लेट्स से 1 लाख रुपीस, PNL कितना है, लेट्स से 5 लाख रुपीस, जनरल रिजर्व कितना है, लेट्स से 3 लाख रुपीस, CRR है 4 लाख का, आपका डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व है 3 लाख का, कौन सा रिजर्व घटा, कौन सा रिजर्व बढ़ा इस साल, कुछ प्लस माइनस किया है कि नहीं, वो सब चेंजेस आपको कहां मिलेंगे? डिटेल्स नोट्स। समझ में आया? तो अपने को प्लस माइनस कुछ भी डायरेक्टली बैलेंस शीट में करना ही नहीं है। बैलेंस शीट विल बी नीट एंड क्लीन विद द फाइनल अमाउंट। जो भी अंदर का मसाला है, प्लस माइनस है, एडजस्टमेंट है, डिटेल्स है, वो सब कहां दिखाई देंगे? नोट्स है। सर नोट्स कितने बनाने हैं, किसके? कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपके जितने आइटम्स हैं ऊपर, उसके हिसाब से आप नोट नंबर देके नोट बना सकते हैं। इज इट क्लियर? नोट नंबर भी आपके ऊपर है, आपके हिसाब से। शेयर कैपिटल को 1 देना, आपकी मर्जी 1 दे दो, रिजर्व्स को 2 देना है, आप 2 दे दो, मेरे को कैश को 1 देना है, शेयर कैपिटल को 2 देना है, रिजर्व्स को 3 देना है, योर विश। इज इट क्लियर? जनरली हम लोग टॉप से बॉटम जाते हैं तो 1 2 3 4 ऐसे हम लोग करते हैं। बात समझ में आई? सर बैलेंस शीट में ओपनिंग क्लोजिंग दोनों बैलेंस है? नहीं, बैलेंस शीट में वहां पे 2 कॉलम दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर। कैन यू सी दैट? आपको सिर्फ करंट ईयर का करना है, 31 मार्च ऑफ करंट ईयर, प्रीवियस ईयर का नहीं करना है। जनरली जो आप एनुअल रिपोर्ट देखोगे ना, उसमें कंपैरेटिव फिगर्स दिए जाते हैं लास्ट ईयर और करंट ईयर के, फॉर द शेयर होल्डर्स टू कंपेयर कितना चेंजेस हुआ। आपको 2 साल का करने की जरूरत नहीं है। ओके, वो तो क्वार्टरली भी देगा आपको। अगर आप देखोगे ना एनुअल रिपोर्ट, यू फाइंड क्वार्टरली रिजल्ट्स आल्सो, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, प्रीवियस ईयर का सेम क्वार्टर, क्वार्टर टू क्वार्टर कंपैरिजन, ईयर टू ईयर कंपैरिजन, सब रहता है। आपको वो सब करने की जरूरत नहीं। ओके, समझ में आया बेटा? 4 हेड्स, व्हाट आर द 4 हेड्स? कम ऑन। शेयर होल्डर पॉइंट, उसके अंदर 2 चीज, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। देन नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, उसके अंदर डिबेंचर, लोन सब आ गया। और फिर करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवलेंट। अभी कभी कभी आपको आता है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। ये किस तरह का एक्सपेंस है? लॉस ऑन इश्यू, डिस्काउंट ऑन इश्यू, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस एक तरह का एसेट है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस एक तरह का फिक्टिशियस एसेट है। व्हाट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस? एसेट में दिखता है, थोड़ा थोड़ा करके हम P&L में राइट ऑफ करते हैं। यस, तो अगर वो आ गया, पूछते तो नहीं है, सपोज आ गया तो कहां डालेंगे, कौन से हेड में? एनी गेस? करंट एसेट की नॉन करंट एसेट? नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में एक हेड मिलेगा अदर नॉन करंट एसेट। देख लो, कैन यू सी दैट? वो अदर नॉन करंट एसेट में ये सब चीज जाती है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, फिक्टिशियस एसेट। इज इट क्लियर? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। क्लियर? नाउ
टेक आउट इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर. इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर्स ले लो और उसमें आई टेल यू इश्यू ऑफ शेयर्स में आपने जगह छोड़ा है कि नहीं आई डोंट नो. यू हैव टू डू बैलेंस शीट नाउ. नहीं छोड़ा है तो सीधा लास्ट साइड पे करो एंड गिव द नेम एज बैलेंस शीट. आई टेल यू एक सब नंबर 16 सब नंबर 16 पेज 237 सब नंबर 16 पेज 237 सब नंबर 16. जगह है तो करो नहीं तो नंबर दे दो. और बैलेंस शीट कैसे करनी है देखो. 3 एंट्री वाला ही सब है. यस COTC वाला. यस हाँ 2 साइड जाएगा हर एक. देखो सब नंबर 16 Issue of shares पेज 237 सब नंबर 16. सॉल्यूशन मिल रहा है तो ठीक है वरना क्वेश्चन देखो और आंसर करो. इजी है. देखो now listen page 237 sum number 16. X company was incorporated with an authorized capital of 90,000 equity shares of 10 each. Bila, the company purchased land and building from Y for fully paid shares. The balance was issued to the public. अगर solution है तो देखोगे 3 एंट्रीज की है हमने. पहला तो COTC वाला है, इसके 2 एंट्रीज हैं. क्या किया है? लैंड एंड बिल्डिंग टू Y एंड Y टू कैपिटल. एंड तीसरा है बैंक टू कैपिटल. मिला. अब करना कैसे बैलेंस शीट? सेम फंडा जो मैंने 12th में बताया था, याद है आपको? जर्नल से बैलेंस शीट कैसे बनाते हो? एसेट है तो डेबिट माइनस क्रेडिट और लायबिलिटी है तो क्रेडिट माइनस डेबिट. सुना क्या बोला? एसेट है तो डेबिट माइनस क्रेडिट और लायबिलिटी है तो सर किसका? एवरी आइटम यू हैव टू चेक. एवरी आइटम ऑफ जर्नल यू हैव टू चेक. जो नलिफाई हो गया वो गायब, जो बचा वो दिखेगा. बैलेंस शीट जिसमें बैलेंस है वो दिखेगा, इसमें बैलेंस नहीं होगा यार. व्हाट इज द फंडा बेटा? एसेट है तो और लायबिलिटी है तो क्रेडिट माइनस. तो अभी लुक एट दिस सम 3 एंट्रीज एंड टेल मी व्हाट शुड गो इन द बैलेंस शीट आउट ऑफ दिस. लैंड जाएगा, शेयर कैपिटल जाएगा एंड बैंक जाएगा. सिंपल. ओके नाउ सबसे पहला नोट्स बनेगा फिर बैलेंस शीट बनेगा. ठीक है. पहले नोट्स में आई विल मेक फर्स्ट नोट फॉर शेयर कैपिटल. ये वाला आई थिंक हो जाएगा बट किचड़ा पिछड़े होगा. सेफ साइड के लिए एक साइड बैलेंस शीट करो, एक साइड नोट्स करो. सिंपल. पेशेंस रखो, उसको चलेगा. हर एक सब में ऐसे ही करो. लेफ्ट में बैलेंस शीट, राइट में नोट्स. टेंशन नहीं. नोट नंबर बताया ना, फाइनल बैलेंस. अब देखो सबसे पहला नोट बना लो शेयर कैपिटल. पहले नोट बना के फाइनल वैल्यूज लिख लो, फिर सीधा चिपका दो बैलेंस शीट. ओके. सो शेयर कैपिटल में पहले लिखने का ऑथराइज दिया है कि ऑथराइज
क्या दिया है? 90,000 equity shares of Text. मिला? कितना है? 90,000 equity shares of Tennis कितना हुआ? 9 lakhs. Double underline it and leave it. 90,000 equity shares of Tennis, double underline and leave it. Double underline मतलब उसको टोटल में लेने का नहीं. Out of column सीधा. Authorize सीधा outer. Authorize is just a piece of info. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ये नोट है, ये बैलेंस शीट नहीं है, ये नोट है. इसका जो फाइनल अमाउंट आएगा वो बैलेंस शीट पे जाएगा. ठीक है? मैं पहले फोकस कर रहा हूँ शेयर कैपिटल पे. अच्छा, अब ऑथराइज के बाद लिखने का इश्यूड एंड पेड अप. इश्यूड एंड पेड अप. आप इश्यूड सब्सक्राइब पेड अप भी लिख सकते हो. इश्यूड सब्सक्राइब कॉल्ड अप पेड अप भी लिख सकते हो. खाली इश्यूड एंड पेड अप भी चलेगा. ऑथराइज लिखते क्यों है? ऑथराइज मतलब अपर लिमिट, वो होना ही चाहिए. नहीं है तो क्वेश्चन मार्क करके छोड़ दो. हमेशा ऑथराइज लिखो पहले. अपर लिमिट होगा ही, दिया है तो ठीक है, वरना क्वेश्चन मार्क करके छोड़ दो. पहले लाइन पे दिया है, इसमें नहीं दिया है, वो टेक्स्ट बुक में मिला. अब कितना इश्यू किया है देखो, कितना कैपिटल दिख रहा है जर्नल में से चेक करो. व्हाट द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन जर्नल? क्रेडिट ऐड करो. 5 लाख, 4 लाख, 9 लाख हुआ. क्रेडिट माइनस डेबिट. डेबिट में कुछ भी नहीं है. कैसे ढूंढा अमाउंट? सिंपल. कैसे ढूंढा? क्रेडिट माइनस डेबिट. 9 लाख हुआ तो क्या लिखना है? 90,000 equity shares of 10 each. 90,000 equity shares of 10 each कितना हुआ बेटा? 9 लाख. और कुछ है कैपिटल में? फोरफीचर, कॉल इन अरियर, उसी को पुश कर दो आउटर कॉलम. अब ब्रैकेट में लिखने का ऑफ द अबाव 40,000 equity shares have been issued for COTC, मतलब consideration other than cash. Of the above, 40,000 equity shares have been issued for COTC. COTC मतलब इसके अगेंस्ट अपने को पैसा मिला नहीं है. COTC is consideration other than cash. Okay? That's it. That's my note for share capital. Done. What next we saw? I think bank and land, right? Land खरीदा है ना? अभी land कौन से हेड पे जाएगा आपका? तो नॉन करंट एसेट में पहला वाला था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. मैंने डिस्कस नहीं किया क्योंकि एक ही सब में है और किधर आने वाला नहीं है. सो नॉन करंट एसेट लिखने की जरूरत नहीं, इधर लिखने था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसका हेड है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपीई बोलते हैं इसको. ये सब हेड्स याद करना पड़ेगा. ये हेड इंपॉर्टेंट नहीं है. मैंने 4 हेड्स जो बोले ना, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, बस ये एक ही सम है और किधर आने वाला नहीं. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसके अंदर लिख देने का लैंड. कितने का लैंड खरीदा है हमने? 4 लाख. खत्म. एंड नोट नंबर 3 आई विल मेक फॉर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. बट यस, आप जब सीए इंटर में करोगे फुल फाइनल अकाउंट तो पूरा रटना पड़ेगा बैलेंस शीट. All the heads you need to remember. वो आ जाता है, प्रैक्टिस करेगा 200-300 मान जाएगा. इजी है, नॉट डिफिकल्ट. चलो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या लिखूं मैं? बैंक. कितना है बैंक का वैल्यू मेरा? 5. डेबिट माइनस क्रेडिट, ये बहुत छोटू था. तो डेबिट माइनस क्रेडिट इज एसेट एंड क्रेडिट माइनस डेबिट इज लायबिलिटी. सिंपल. अभी यही चीज के फाइनल अमाउंट यहाँ पे लिखने हैं. सबसे पहले आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी. इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर क्या था आपका पहला हेड? शेयर होल्डर फंड. याद है आपको? अभी किया डिस्कस. शेयर होल्डर फंड्स में क्या है हमारे पास? आई थिंक शेयर कैपिटल. तो शेयर कैपिटल को हमने कौन सा नोट दिया है? नोट नंबर 1. और वैल्यू कितनी है? ये ऑथराइज मत लिखना, कौन सी वैल्यू लिखनी है? इश्यूड वाली.
9 लाख ऑथराइज कोई काम का नहीं है, हाँ ये वो इंफॉर्मेशन है ऐसे अपर लिमिट का। फिर शेयर होल्डर फंड के बाद है मेरे पास सीधा एसेट, तो मैं इधर लिख दूंगा टोटल इसका कितना होने वाला है 9 लाख, ये मेरा लायबिलिटी हो गया खत्म। उसके नीचे मैं लिखूंगा एसेट्स में मेरे पास है नॉन करंट एसेट्स, सबसे पहला आएगा नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में आई हैव प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, द हेड इज दिस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसका वैल्यू है 4 लाख। तो मुझे जानना है कि इसके अंदर कौन सा एसेट है, तो मैं नोट नंबर 2 रेफर करूंगा, मुझे दिख जाएगा इसमें लैंड है। सुना है? शेयर कैपिटल 9 लाख है, ये 9 लाख कहां से आया तो मुझे जानना है। सी एट नोट नंबर 1, लुक एट नोट नंबर 1। देन व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट? नॉन करंट एसेट के बाद आई हैव करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में व्हाट इज द हेड? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का वैल्यू है 5 लाख। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का वैल्यू है 5 लाख। अगर मुझे जानना है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या है, आई रेफर टू नोट नंबर 3। लास्ट में टोटल will again tally. Clear? That's how we make a balance sheet. हाँ अरे आज तक एक ही आइटम में या 2 आइटम में मैक्स आया है, इतने आइटम में से बैलेंस शीट 1 या 2 आइटम में 2 से 3 मार्क का आता है, for 2 to 3 marks. Rare chance of coming, but कर लो, इंटर में तो आने ही वाला है, तो काम का ही है। करके जाओ। सबके साथ पूछा तो 15 मार्क के सम में 2 या 3 मार्क, 10 मार्क के सम में 2 मार्क का छोटा है। नोट्स दिखाना कंपलसरी है। नोट्स कंपलसरी एकदम पूरा डिटेल में रेडी और ऐसे ये फॉर्मेट हो जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे। नाउ एक सम नंबर 14 सम 3 के पहले है। हाँ 14 सम देखो, वो एक्चुअली 3 का नहीं है, हमने 3 किया है। देखो सम नंबर 14 अभी give the solution in such a way. ये जो मैंने आपको हेड्स दिए ना, इसके बाहर का कुछ नहीं आएगा। शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एक सब में खाली यह है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट।
बाय चांस डिस्काउंट आया तो अदर नॉन करंट एसेट, वो अदर नॉन करंट एसेट और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वेरी रेयर था। चार ही मेन है, शेयर कैपिटल, रिजर्व, लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। चलो ना नेक्स्ट वन, सम नंबर कौन सा बोला मैंने 14। 14 वाला सॉल्यूशन सामने रखो। देखो आपके पास 3 एंट्रीज है, कैन यू सी दैट? वो 3 एंट्रीज किसके हैं? 4 फीचर, रीइश्यू एंड ट्रांसफर, राइट? बट वो 3 एंट्री का सम नहीं है, हमने 3 एंट्री किया है। वो सम कहां से शुरू हुआ होगा? एप्लीकेशन, रिसीव, ट्रांसफर्ड, अलॉटमेंट ड्यू, रिसीव, फर्स्ट कॉल ड्यू, रिसीव। 2 कॉल है, 1 कॉल है? क्या मालूम? एक कॉल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सो उसके ऊपर 6 और एंट्रीज हैं। Did you understand what are those 6 entries? You have bank to application, application to capital, allotment to capital to premium भी है शायद। Allotment to capital to premium, bank, call in arrear, you got it? To allotment, then first call to capital, bank call in arrear to first call. Then you are cancelling the shares and then reissuing and then transfer, right? So आपको वो 6 एंट्रीज सोचनी पड़ेगी, फिर बैलेंस शीट बनेगी। तो वो जो 6 एंट्री चाहिए तो लिख के कर सकते हो या फिर दिमाग में फ्रेम कर सकते हो। मैं आपको शॉर्टकट भी बताता हूँ उसका। देखो नहीं किया, लिखा नहीं, 6 एंट्रीज तो भी कर सकते हो। देखो सबसे पहले ट्राई टू आइडेंटिफाई द आइटम्स। चलो सोच के बताओ इसमें से बैलेंस शीट में क्या जाएगा? कैपिटल, सबसे पहला कैपिटल है और बैंक जाएगा, कैपिटल जाएगा। और विल यू राइट एप्लीकेशन, फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट? नो। और कैपिटल रिजर्व जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम जाएगा। सबका समझ में आ रहा है? वन सेकंड, कैसा पता चल रहा है? क्योंकि इनमें डिफरेंस आएगा क्रेडिट माइनस डेबिट करके। एप्लीकेशन में आएगा क्रेडिट माइनस डेबिट डिफरेंस, नील हो जाता है। फर्स्ट कॉल नील, अलॉटमेंट नील, वो सब तो गायब। बचा क्या? बैंक एसेट में है, शेयर कैपिटल जाएगा और क्या बोला? सिक्योरिटी प्रीमियम जाएगा, रिजर्व है और कैपिटल रिजर्व जाएगा। और हाँ अभी कॉल इन अरियर, सोचो कॉल इन अरियर नलिफाई हो जाएगा कि जब बचेगा? क्यों? क्योंकि पूरा नंबर ऑल द शेयर्स वर फोरफीटेड। यस और नो? चेक करो, चेक करो। राम का 500, श्याम का 1000, ऑल द शेयर्स वर फोरफीटेड 1500। लेकिन रेशियो कितना हुआ है? 1250 हुआ। तो जैसे आप फोरफीट करते हो यू क्रेडिट कॉल इन अरियर, तो जितना डेबिटेड है उतना क्रेडिटेड है। नहीं समझ में आ रहा है तो 6 एंट्री लिख के करो। जितना डेबिट में कॉल इन अरियर है फोरफीट करते हो तो उतना क्रेडिट कर देते हो। तो कॉल इन अरियर आने वाला है कि नहीं आएगा? नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट शेयर फोरफीट? क्यों आएगा? बिकॉज आपने कैंसिल किया है 1500 शेयर लेकिन रेशियो किया है 1:5। तो 250 शेयर अभी भी रेशियो करना, तो सारा का सारा फोर फीचर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं हुआ, फ्यूचर रेशियो के लिए थोड़ा पड़ा है। याद आया? तो फोर फीचर में डिफरेंस मिलेगा, आप उधर ही करके देख सकते हो, आपके सामने है। फोर फीचर, शेयर फोर फीचर पहली बार कहाँ दिखता है? फोर फीचर एंट्री में दिखता है, फिर रेशियो में दिखता है, फिर ट्रांसफर में दिखता है। करके देखो, क्रेडिट माइनस डेबिट आएगा डिफरेंस अपने आप। क्रेडिट माइनस डेबिट, यू विल गेट द डिफरेंस इन फोर फीचर। यस, आई टोल्ड यू व्हाट विल गो इन बैलेंस शीट। क्रेडिट माइनस डेबिट, इसमें डिफरेंस आ रहा है, समझा? एसेट है तो डेबिट माइनस क्रेडिट, लायबिलिटी है तो क्रेडिट माइनस डेबिट। फोर फीचर इज लायबिलिटी, फोर फीचर इज रिजर्व। फोर फीचर अपना प्रॉफिट है, क्या कहां जाएगा? फोर फीचर शेयर कैपिटल के साथ ऐड हो जाएगा। कॉल इन अरियर क्या करोगे? शेयर कैपिटल से माइनस। फोर फीचर क्या करोगे? शेयर कैपिटल में ऐड। वैसे तो रिजर्व है बट यू ऐड इट टू शेयर कैपिटल। डिस्काउंट है तो नॉन करंट, नॉन करंट एसेट, वो फिक्टिशियस है। इज दिस क्लियर गाइस? और क्या जाएगा? बस आइटम्स आर क्लियर। सबसे पहला हेड, लेट्स मेक शेयर कैपिटल। लेट्स मेक शेयर कैपिटल। डू यू हैव एनी इन्फो ऑथराइज्ड? ध्यान से सुनना, दिमाग वाला समय, वो 6 एंट्री नहीं करनी तो दिमाग लगाना है। ऑथराइज्ड इन्फो दिया है क्या कुछ? तो क्वेश्चन मार्क करो, छोड़ दो, नील मत लिखना। ऑथराइज्ड कैन नेवर बी 0, you don't know, it is the upper limit, leave it. Then issued and paid up, लिखो।
issued and paid up, issued and paid up capital issued and paid up capital, ध्यान से देखना. How do you calculate capital? It is credit minus debit. But we do not have the remaining entries. So use your logic. How many shares did we issue in the beginning? Total issue कितना किया था? 30,000. Can you see that? 30,000 issue किया था. उसके बाद 1,500 हमने क्या किया? forfeit. तो वो कैंसिल हो गए. और उसके बाद 1250 वापस इश्यू किया. 2975. तो अब कितने बचे हैं? 2975 equity shares of 10 each fully paid up, या 10 each लिखा तो भी चलेगा. कैसे मिला? 30,000 शेयर्स इश्यूड थे, बराबर, माइनस 1500 कैंसल प्लस 1250 रीइश्यू. व्हाट इफ सारे के सारे रीइश्यू कर देते? 30,000. सारे के सारे रीइश्यू कर देते 30,000 हो जाते. सारे के सारे रीइश्यू अभी तक किए नहीं है. सारे के सारे अभी तक रीइश्यू नहीं किया, बराबर है. देख लो, मिला? Got it? Moving ahead, 29,750 equity shares of 10 each. अभी इसमें से आपको चेक कर लेने का है क्या कुछ बोनस दिया है, क्या कुछ COTC किया है, ऐसा कुछ है? देख लो, नहीं है तो आई थिंक दिस शुड बी 2. नहीं, एक और चीज है इसमें 297500. एक और चीज शेयर कैपिटल के साथ दिखेगी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट. शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट क्या आपका प्रॉफिट है. शेयर फॉर फ्यूचर इज योर प्रॉफिट, बट अभी तक वो टेम्पररी है कि परमानेंट है? टेम्पररी है. परमानेंट कब बनेगा? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होने के बाद. कैपिटल रिजर्व है तो रिजर्व, फॉर फ्यूचर है तो कैपिटल में ऐड, टेम्पररी रिजर्व. तो इधर ऐड कर देने का, ऐड शेयर फॉर फ्यूचर, ऐड शेयर फॉर फ्यूचर, ऐड शेयर फॉर फ्यूचर. कैसे मिलेगा शेयर फॉर फ्यूचर? डेबिट माइनस क्रेडिट की क्रेडिट माइनस डेबिट? क्रेडिट माइनस क्रेडिट माइनस डेबिट, इट्स अ प्रॉफिट. तो करो 3 एंट्री है, क्रेडिट माइनस डेबिट 1500 मिला. कैपिटल भी है ना, अगर मेरे पास पूरा सम होता ना तो मैं क्रेडिट माइनस डेबिट ही करके ढूंढ लेता. बट मेरे पास पूरा सम, मेरे को 6 एंट्री करने का मगजमारी नहीं करना है. तो कैपिटल का सिंपल फंडा है, क्या करने का? इश्यूड माइनस फॉरफिटेड प्लस रीइश्यूड. इश्यूड माइनस फॉरफिटेड, कॉमन सेंस है. इश्यूड मतलब इतना शेयर्स है, फॉरफिटेड मतलब कैंसल्ड है, रीइश्यूड मतलब वापस ऐड कर दो. इश्यूड माइनस फॉरफिटेड प्लस रीइश्यूड. इज इट क्लियर? अगर आपको एंट्रीज के थ्रू करना है तो क्रेडिट माइनस डेबिट. अगर एंट्रीज के थ्रू नहीं करना है, डायरेक्टली क्वेश्चन देख के करना है तो इश्यूड माइनस फॉरफिटेड प्लस रीइश्यूड. इश्यूड माइनस कैंसल्ड फॉरफिटेड प्लस रीइश्यूड. तो ये शेयर्स मिल गया, ये फॉरफिचर मिल गया. और कुछ है? कॉल इन अरियर जाएगा. व्हाई कांट बी देयर एनी कॉल इन अरियर? सर वो तो खाली क्रेडिट में, डेबिट में तो है ही नहीं. ऊपर कॉल इन अरियर जो डेबिट किया था वही क्रेडिट किया. And because you have cancelled all the shares, the call in arrear has become 0. So that is nil. So ये कितना आएगा? 2,99,000. That's my amount of capital. Okay, what do we have next? Reserves. Reserves and surplus. Reserves and surplus. What do we have in reserves and surplus? एक तो हमारे पास capital reserve है. Yes? कहाँ से मिलेगा capital reserve? एकदम लास्ट एंट्री में आएगा कैपिटल रिजर्व. बीच में कहीं भी आता है क्या? सेकेंड एंट्री, थर्ड एंट्री, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन. सोच लो, एकदम लास्ट में दिखेगा कैपिटल रिजर्व. कितना है? 3,500. एक और रिजर्व दिखेगा यहाँ पे आपको, सिक्योरिटीज प्रीमियम. सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट माइनस, दोनों क्रेडिट माइनस डेबिट किया है. अब सिक्योरिटी प्रीमियम देखो सर, ये तो डेबिट में है सिक्योरिटी प्रीमियम, बट ऊपर क्रेडिट में भी है ना. कहाँ होगा क्रेडिट में? अलॉटमेंट ड्यू पे, राइट? सोचो कितना क्रेडिट किया होगा, सोचो, इमेजिन करो. 60,000. अलॉटेड शेयर पे करते थे आप, ड्यू अमाउंट की एंट्री थी 30,000 इंटू 2 बोले तो 60 उसका क्रेडिट था, माइनस डेबिट में कितना है?
1 60 माइनस 1 समझ में आया बेटा? सर नहीं जम रहा है तो 6 एंट्री लिखना पड़ेगा। अगर इमेजिन कर पा रहे हो अलॉटमेंट का तो ठीक है। Did you all get the point? Third entry of allotment, it was 60,000. Third entry of allotment, it was 60,000. Due amount 30 into 2 बराबर है ना? 5 में से 3 और 2 3 कैपिटल 2 प्रीमियम तो 60 क्रेडिट में था ये सीधा 4 फीचर में डेबिट हुआ 60 माइनस 159 और कोई रिजर्व है अपने पास? ये अब कितना हो गया 62 500 फिर जाते हैं तीसरा नोट पे और क्या है अपने पास? कैपिटल रिजर्व हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया कैपिटल हो गया शेयर होल्ड फीचर हो गया कैश एंड बैंक किसमें जाएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में अपने पास बैंक है। ओके नाउ हाउ डू आई गेट बैंक? हाउ डू आई गेट बैंक? हाउ डू आई गेट बैंक? इट इज डेबिट माइनस क्रेडिट राइट? डेबिट माइनस क्रेडिट करेक्ट? यस। अब बैंक का पैसा पूरा 6 एंट्री का डेबिट माइनस क्रेडिट करके मिलेगा। क्रेडिट में कुछ भी है क्या? कुछ ओवर सब्सक्रिप्शन का क्रेडिट है क्या? सब डेबिट्स ही है। श्योर? पक्का? ऑल आर डेबिट्स, नीड नॉट सब्ट्रैक्ट एनीथिंग। वन वे ऑफ डूइंग दिस इज यू सर्च कितना पैसा आया कितना पैसा आया सब 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 ऐड करो। शॉर्टकट है दूसरा जो बैलेंस शीट में और एसेट में एक ही आइटम है। So whatever the total of liability, that is the total of bank. So you can directly take the total and get the amount of bank. Now the journal also are going to get the same amount. You got the point? या तो आप सोचो कि कितना पैसा आया, कॉल इन एरियर माइनस करके सब डेबिट्स ऐड करो, वो लॉन्ग कट है। शॉर्टकट इधर ये दोनों को ऐड कर दो, कितना आता है? 3,61,500। सॉरी वो रॉन्ग नहीं होना चाहिए। बैंक रॉन्ग हो गया तो बैंक में भी 6 एंट्रीज में गायब है ना। हर एक का सोचना पड़ेगा कितना कॉल इन एरियर है माइनस करके देख के, या तो फिर दूसरा मेथड भी है वो भी बताता हूँ। पहले ये लिख लो, ये समझा शॉर्टकट। अभी बना लो बैलेंस शीट। सबसे पहला शेयर कैपिटल, इधर क्या अमाउंट लिखूंगा? ऑथराइज सॉरी ऑथराइज तो क्वेश्चन मार्क है। सीधा फाइनल वैल्यू कितना लिखूंगा? 2,99,000। देन I'll write reserves and surplus. Reserves and surplus. That is 62,500. Total is 361,500. And on the asset side, do I have any non-current assets? No. I just have current assets, cash and cash equivalent, which is 361,500. Tallies on 361,500. सर Yeah. बैंक का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो कैसे है 361,500 एक बार बता। एक तो तरीका है डेबिट माइनस क्रेडिट। क्रेडिट में कुछ नहीं है, सारे डेबिट्स ऐड करने हैं। दूसरा एक और शॉर्टकट है, बताता हूँ। एक सेकंड ये कर लो, बता दो। कॉपी दिस। उसमें प्रीमियम भी आ जाएगा। सर उसमें बैंक सब डेबिट हुआ तो माइनस क्या सीआईए करने का? माइनस है ही नहीं ना कुछ। कुछ नहीं होगा, ऐड करते जाएंगे। बैंक का ही डेबिट्स ऐड करते जाना है। क्रेडिट्स में बैंक है ही नहीं, बैंक का डेबिट्स ऐड करना। आपको पता होना चाहिए कितना पैसा है, उसका शॉर्टकट है, बताता हूँ। ये कर लो पहले। सर वो शॉर्टकट समझा। हाँ। अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? वही कैलकुलेशन का ही शॉर्टकट है। नहीं सर पर जो नंबर ऑफ शेयर्स है वैसे ही कर सकते हैं। ये शॉर्टकट नहीं, ये तो सीधा छाप दिया। हाँ वही मुझे लगा वही बैंक का अमाउंट ढूंढने का बताता हूँ। इनटू करके कर। हाँ इंटू करके, दिमाग लगाओ। इंटू करके क्वेश्चन से कैसे करोगे? बैंक सोचो। प्रीमियम हटा के क्या? प्रीमियम के साथ। हाँ प्रीमियम के साथ। हाँ ऐसा आता है प्रीमियम के साथ। 30,000 की कितने शेयर है? बताता हूँ, पहले ये कर लो। ये समझा, ये सिंपल ट्रिक है। टोटल ऑफ एसेट, एक ही एसेट है तो वही टोटल रहेगा। ऊपर वाले बराबर करते हैं, लेकिन ऊपर वाला गलत हुआ तो नीचे रॉन्ग चला जाए। नहीं वो इधर से करना है। अभी प्रीमियम भी आ जाएगा ना बैंक।
ये वो सेपरेट 30,000 में 3 बार तो 3,000 30,000 to 3 फिर 500 नहीं बचा दिया into 5 फिर और 6,000 वो भी कर सकते हो, खाली कितना पैसा है उस पर ध्यान दो, वो भी हो सकता है। सीधा आ जाए। Anyone found the amount by shortcut calculation of bank looking at the question? देखो एक मिनट, number of shares, total value, very good. एक मिनट, 30,000 into total value 12, 3,60,000, 4 फीचर ऐड कर, वही हो गया ना, ऐड 4 फीचर तो भी सेम ही आएगा 1500। यहाँ पे थोड़ा लॉजिकली देख लो, क्या करो 30,000 into 12 that is 3,60,000, ये टोटल वैल्यू मिलना चाहिए था, लेकिन मिला क्या? मिला, टोटल मिला सबसे 12 रुपया नहीं मिला, जो नहीं मिला उसको क्या बोलते हैं? तो वो माइनस कर दो, लेस कॉल इन अरियर कितना था? ऊपर वाला 4 फीचर वाला कॉल इन अरियर 8,500 था, मिला, हटा दो, कितना हुआ? 3 whatever। हाँ, अभी इसमें आपका रीइश्यू किया हुआ है, उसमें बैंक में कितना लिखा है? बस, समझ में आया? टोटल वैल्यू सबसे इतना एक्सपेक्टेड था, दैट इज नंबर ऑफ शेयर इनटू 12। इसमें कुछ गधे लोग ने कुछ पैसा नहीं भरा, तो टोटल में से इतना काट दो, इतना नहीं भरा, और फिर नए वाले को इश्यू क्या बोलते हैं? नजर के सामने ही है, रीइश्यू का अमाउंट बैंक कितना आया है? 10, ये पैसा आ गया। पुराने वाले ने इतना दिया 351,500, नए वाले ने इतना दिया, टोटल पैसा 361,500। वो भी तरीका है, ये भी तरीका इसने बोला 360 प्लस सीधा 4 फीचर ऐड करो। फिर और भी तरीका है आपका, ये टोटल ले सकते हो, टोटल शेयर्स का अमाउंट रिसीव्ड, इंडिविजुअल देखना पड़ेगा, इंडिविजुअली किसने कितना भरा वो भी करेगा, और थोड़ा लॉन्ग कट मेथड है। दिस इज पास, ए ने कितना भरा, बी ने कितना भरा, सी ने कितना भरा, डायरेक्टली कर दो, दिस इज इजियर। टोटल पैसा ये वाला समझ में आया? ये वाला 3,60,000 मिला, हेलो, क्या किया मैंने? टोटल लिया प्लस 3,60,000 माइनस कॉल इन अरियर, जो पैसा नहीं भरा, प्लस रीइश्यू बैंक 3 लाख, हाँ 59 प्रीमियम और 2500 प्रॉफिट। हाँ वो करने से, हाँ वो भी कर सकते हो, या फिर 28,500 शेयर्स लो, 28,500 तो पूरा भरा into 12, और फिर इसमें से 1,500 कैंसिल, 1,250 आए, मतलब 250 का पैसा काट दो, 250 का पैसा ऐड कर दो। सॉरी, टोटल तो छापना इजी है, लॉजिकली सोचना है तो ये सिंपलेस्ट मेथड है सबसे, ये समझ में आया? अभी शेयर्स में इतना ही इनफ है, इश्यू ऑफ शेयर्स में गो टू डिबेंचर्स, टाइम डिबेंचर्स में
आई थिंक एक ही सब में आपको बैलेंस शीट है. लुक एट सम नंबर. नहीं 8 सब में है. सम नंबर 8. लुक एट सम नंबर 8 ऑल ऑफ यू. पेज 242 सम नंबर 8. 242 सम नंबर 8. देखो एक मिनट. 242 सम नंबर 8. हाँ, एक ही एंट्री का सम है वो. ये होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको. एक्स लिमिटेड ऑब्टेन्स लोन फ्रॉम आईडीबीआई बैंक. वो एक ही एंट्री किया उस सम में हमने. क्या किया है? बैंक टू बैंक लोन. कैन यू सी दैट? अब सुनो ध्यान से बेटा. बैंक टू बैंक लोन मिला. सुनिए, बैंक टू बैंक लोन एक ही एंट्री है. अच्छा, कोलैटरल में डिबेंचर दिया है. डू यू पास एनी एंट्री फॉर कोलैटरल? उसका मतलब क्या है समझा? आपने लोन लिया 1 करोड़ का, डिबेंचर को गिरवी रख के. मतलब अगर फ्यूचर में लोन ना चुका पाए तो लोन को यू विल कन्वर्ट इट इनटू डिबेंचर. 1 करोड़ के लोन के जगह 1.5 करोड़ का डिबेंचर दिया जाएगा. अभी तक तो 1 करोड़ ही है. इंटरेस्ट भी 1 करोड़ पे ही देगा. 5 साल बाद नहीं चुका पाया तो डिबेंचर दे देगा उसको. एक टोपी घुमाने का काम है. एक लोन का दूसरा लोन. इज इट क्लियर? बट क्यों वो देगा राजी खुशी? क्योंकि 1 करोड़ के जगह 1.5 करोड़ का डिबेंचर मिल रहा है. तो मतलब उसको इंटरेस्ट फिर 1 करोड़ के जगह 1.5 करोड़ में मिले. दैट इज लॉलीपॉप. इज इट क्लियर? तो अपने को बैंक टू बैंक लोन घुसाना है इधर. कैसे करेंगे? बैंक किस में जाएगा? कैश इन कैश इक्विवेलेंट. और बैंक लोन पहले हेड क्या आएगा? इक्विटीज एंड लायबिलिटीज के अंदर नॉन करंट लायबिलिटीज. राइट. इक्विटीज एंड लायबिलिटीज के अंदर किस में जाएगा? नॉन करंट लायबिलिटीज. उसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. ये सब अंदर का मसाला. इधर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर डिबेंचर, सॉरी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर बैंक लोन, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर बैंक. 2 नोट बनेगा. इधर क्या दिखेगा? इक्विटीज एंड लायबिलिटीज. शेयर होल्डर फंड नहीं दिखेगा. नॉन करंट लायबिलिटीज. उसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड इधर करंट एसेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. गॉट इट? नहीं. बैंक और बैंक लोन इधर नहीं दिखेगा. बैंक और बैंक लोन इधर नहीं दिखेगा. इधर दिखेगा. Listen, all of you open IDBI bank. IDBI लोन बोल रहे हैं. IDBI बैंक क्या है? अभी ओपन बोनस एंड राइट्स. बोनस एंड राइट्स क्विक. बोनस एंड राइट्स. बोनस एंड राइट्स में लुक एट. अभी सॉल्यूशन ओपन करो. सम नंबर 3 पेज 345. बोनस एंड राइट्स सम नंबर 3 पेज 345. 3. देखो सब नंबर 3. देखो ध्यान से. Following notes pertain to the balance sheet of Solid Limited as at 31st March. मिला? Page 345. Okay. अब if you see the question, वो लोग ने एक बैलेंस शीट दिया हुआ है ऑलरेडी. वैसा आपको नहीं बनाना, आपको ऐसे ही बनाना है नोट्स वाला. ठीक है? You have to make this notes वाला. Okay, sir. And it is not a full-fledged balance sheet, it is just an extract. ये टैली नहीं होगा, इधर खाली liability देके छोड़ दिए.
ये टैली होने वाला नहीं, अपना भी नहीं होगा, इनका भी नहीं हो रहा है, ये टैली नहीं होगा। इसमें आपको खाली चेंजेस दिखाने प्लस माइनस के। नहीं चेंज हो जाए। अभी सुनो, इसमें जर्नल एंट्रीज देखो आप सामने, क्या किया है आपने जर्नल में? पहले तो कॉल मंगवाया है, फाइनल कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फाइनल कॉल, आई थिंक इट इज 1,80,000 एंड फिर रिजर्व्स टू शेयर बोथ बीटीएसएल एंड बीटीएसएल टू कैपिटल, 4 एंट्रीज ही है बराबर। अब सोचो इसमें से क्या क्या चेंज हो रहा है। सबसे पहला बैंक टू कॉल टू कैपिटल, बैंक टू कॉल, तो कॉल कट, बैंक चेंज होगा, कैपिटल चेंज होगा, अग्री। फिर रिजर्व टू बीटीएसएस, बीटीएसएस टू कैपिटल, बीटीएसएस इज कैंसल्ड, रिजर्व चेंज होगा और कैपिटल वापस चेंज होगा। तो बेसिकली आई एम चेंजिंग बैंक, सुनो, आई एम चेंजिंग बैंक, आई एम चेंजिंग रिजर्व्स, आई एम चेंजिंग कैपिटल, करेक्ट? ओके, लेट्स स्टार्ट। ऑथराइज्ड, नोट चालू करो शेयर कैपिटल का। ऑथराइज्ड आपको दिया हुआ है, कैन यू सी दैट? सर इसमें पहले के कॉल्स का तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं। पहले कॉल तो आ चुके हैं ना ऑलरेडी, ऊपर है कैपिटल। देखो क्वेश्चन में से ही देखना है डिटेल्स। ऑथराइज कितना दिया है? इट इज 10,000, 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 each, मिला, which is 1 lakh and 1 lakh equity shares of 10 each। इधर से मिला मेरे को ये, कहां से छापा मैंने ऑथराइज? बता। क्वेश्चन में ही आपको ऑथराइज कैपिटल दिया हुआ है, जस्ट कॉपी इट डाउन एज इट इज। क्वेश्चन में ही मिल रहा है आपको ऑथराइज, जस्ट कॉपी इट डाउन। देखो ये हम लोग करते थे ना अपना एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ का बैलेंस शीट बनाते थे एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट की मदद से। जो चेंज हुआ उसमें चेंज करो, जो नहीं है वो छापो, याद है? तो वही लॉजिक है, जो चेंज हुआ वो चेंज करो, जो नहीं है वो छापो। तो ऑथराइज इज से, अच्छा एक मिनट, ऑथराइज इज नॉट सेम, 1 मिनट। देखो आपका ऑथराइज में इक्विटी शेयर्स कितना था? ऑथराइज में इक्विटी शेयर्स कितना था? 1 लाख। अब इश्यूड में देखो इक्विटी शेयर्स कितना है? इश्यूड में 90,000 है, वो 8 का भी कितना हो गया? 10। कॉल के बाद 10 का हो गया, 10 का हो गया ना, 8 पेडअप के बाद 10 कॉल मंगाया, तो 90,000 of 10 is how much? 9 lakh. Now listen to me very carefully. आपने बोनस भी इश्यू किया है, तो कैपिटल कितने से बढ़ा? और कितना नंबर ऑफ शेयर्स बोनस में थे? 22,500. So 90,000 plus 22,500 कितना होता है? 112,500. So can I have 1 lakh as authorized and issued में 112,500? कैपिटल तो बढ़ा है, क्रेडिट माइनस डेबिट, क्रेडिट माइनस डेबिट ऐड होगा ना, जर्नल में क्रेडिट माइनस डेबिट ऐड हो रहा है, कैपिटल दोनों जगह क्रेडिट में है, 1,80,000 क्रेडिट में है एंड 2,25,000 क्रेडिट में है। 180 प्लस 225 कितना होता है? 4,05,000 होता है। 4,05,000 प्लस 7,20,000 कितना होता है? 11,25,000 होता है। लेकिन यहाँ पे ऑथराइज तो 11 लाख ही है। इज इट पॉसिबल? एंड ऑथराइज भी लेसर देन इश्यूड। ऐसे केस में कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा के पहले ऑथराइज कैपिटल बढ़ाती है। अब कितने से बढ़ाना है? देयर आर 2 ways ऑफ डूइंग इट। या तो ऑलरेडी 1 लाख था, उस पे बोनस शेयर्स कितना आया? 22,500, तो चिपका दो, 122,500 बना दो। या फिर एकदम सिंपल रखते हैं, आईसीआई भी फॉलो करता है, चलता है, क्या करने का? जितना इश्यूड है उतना ऑथराइज रखो। सिंपल, जितना इश्यूड है उतना ऑथराइज रखो, तो टेंशन नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ ऑथराइज रखने की जरूरत नहीं है। जितना इश्यूड है उतना ऑथराइज रखो। ओके, तो ऑथराइज मैंने छोड़ा हुआ है, इश्यूड एंड पेड अप देख लो, मैं बताता हूं। इश्यूड एंड पेड अप देख लो। इश्यूड एंड पेड अप में प्रेफरेंस शेयर्स चेंज हुए हैं? इज देयर एनी चेंज इन प्रेफरेंस शेयर्स? नो।
keep it as it is. 8,000, 12% preference share of 10 each. 8,000, 12% preference shares of 10 each, that is 80,000. Keep preference share as it is. Now focus on equity. How many equity shares you had already? 90. 90,000 shares of 10 each, 8 paid up थे. उसको हमने क्या किया? कॉल मंगाया, 180 ऐड हो गया, तो 90,000 शेयर्स ऑफ 10 फुली पेड अप हो गया, तो 9 लाख. फिर बोनस बोनस, कितना शेयर्स का बोनस? 22,500 बोनस में क्या होता है? रिजर्व घटता है, कैपिटल बढ़ता है. तो 90,000 प्लस 22,500. अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 112,500. तो इधर लिखना है 112,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच की 8 ईच. 10. 112,500. Is that right? 112,500. समझ में आया? तो मेरा बोलने का मतलब यही था कि अभी 1,12,500 इक्विटी शेयर से समझ में आ रहा है सबको? 90,000 पे बोनस आ गया 22,500. तो आपका ऑथराइज्ड कैन इट बी 1 लाख शेयर्स? नॉट पॉसिबल. सो यू मेक योर ऑथराइज्ड कैपिटल एज 112,500 शेयर्स ऑफ 10. सेम वैल्यू छाप दो, सेम वैल्यू छाप दो. जितने से आपका इश्यूड बढ़ा उतने से ऑथराइज उधर इंक्रीज करके दिखा दो. नो नीड ऑफ एनी नोट. इधर नोट आएगा, बताता हूँ. इधर नोट करने की जरूरत नहीं है. आउटर कॉलम आएगा 12,25,000. इधर नोट में लिखना है ऑफ द अबव. अभी लिखा था ना हमने, ऑफ द अबव 22,500 equity shares are issued as bonus shares. Of the above 22,500 equity shares are issued as bonus shares. शेयर कैपिटल में क्या चेंज हुआ समझ में आया आपको? नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए. अगर नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ने के बाद भी ऑथराइज के नीचे होते तो कुछ चेंज करने की जरूरत, क्योंकि ये ऑथराइज वाज 1 लाख एंड अपना 112,500 है. दिस कैन नॉट बी लेसर देन इश्यूड. ऑथराइज कैन नॉट बी लेसर देन इश्यूड, सो वी इंक्रीज इट. दो तरीके हैं बढ़ाने के. या तो पहले 1 लाख था, 1 लाख का सीधा 22,500 शेयर्स बढ़ गए, 22,500 से बढ़ा दो. 122,500 भी लिख सकते हो. 122,500 ऑथराइज तो भी चलेगा. या तो जितने से एक्स्ट्रा शेयर्स हुए हैं उतना एक्स्ट्रा बढ़ा दो तो भी चलेगा. बोथ द टेक्निक्स आर फाइन. ओके, दिस इज सिंपलर आई थिंक. जितना इश्यूड है उतना ऑथराइज लिखो, टेंशन नहीं. समझ में आया? बट ध्यान रखना, ऑथराइज कभी इश्यूड से छोटा नहीं हो सकता. सेम हो सकता है, सेम में प्रॉब्लम नहीं है. बस इतना ही है. शेयर कैपिटल टोटल खींच लो बाहर. 112 कितना है? 12 lakh. Okay, 12,05,000. Then next head we have is reserves and surplus. Reserves and surplus. मुझे बताओ देख के. Originally there was general reserve 1,60,000. Is it the same? How much it is now? देखो आपने कितने से डेबिट किया है. रिजर्व बढ़ेंगे कि घटेंगे? ये वाले रिजर्व घट रहे हैं. कितना दिया है बोनस के लिए? कितने से डेबिट किया है जनरल रिजर्व? एक मिनट, जनरल रिजर्व से किया था आपने एंट्री में कि पीएनएल से किया? पीएनएल से किया. जनरल रिजर्व वैसे का वैसा, ठीक है. कीप इट एज इट इज. नेक्स्ट इज रीवैल्यूएशन रिजर्व. एनी चेंज? किया है. अगर आपने एंट्री में जनरल रिजर्व डेबिट किया है तो उसमें से माइनस करो. पीएनएल से किया है तो पीएनएल से माइनस करो. अब मैं पीएनएल ले रहा हूँ, पूरा उड़ा जाए तो निकाल ही देना. बता रहा हूँ, प्रेजेंटेशन देख लो बाद में छापो. रीवैल्यूएशन रिजर्व, एक मिनट. रीवैल्यूएशन रिजर्व इज इट सेम और डिफरेंट? रीवैल्यूएशन रिजर्व इट इज सेम. मैंने बोला था ना रीवैल्यू रिजर्व को टच नहीं करने का. इमेजिनरी प्रॉफिट रीवैल्यू रिजर्व डोंट टच. देन सिक्योरिटी प्रीमियम चेंज है कि सेम है? नलिफाई हो गया, उड़ गया. तो ऐसे लिखने का 20,000 लेस बोनस इश्यू. 20,000 लेस बोनस इश्यू 20,000. दिस हैज बिकम 0. और क्या है? तो इधर दिखाना पड़ेगा 20,000 लेस 20,000 नील. और क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इसमें से उठाया आपने. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कितना लिया है?
2,05,000. Can you see that? 2,05,000 लिया है. So नहीं पूरा ले लिया. हाँ 2,05,000 minus bonus issue. 2,05,000 minus bonus issue is 2,05,000. फुल लिया ना? हाँ तो ये भी हो गया नील. और क्या है पीछे? सिक्योर्ड लोन डिबेंचर में कोई चेंज नहीं है. तो आपका रिजर्व नहीं, एक और रिजर्व आएगा, सीआरआर आएगा. सीआरआर अच्छा हाँ, इधर नहीं, इधर नहीं. तो इधर आपका रिजर्व हो गया 1,95,000 बराबर. 1,95,000 मिला. और अभी गॉट इट. वंस अगेन जो रिजर्व में आपने घटाया है उसमें से माइनस कर दो. जो रिजर्व में से आपने से घटाया है उसको माइनस कर दो. और कुछ बड़ा है तो ऐड हो जाएगा. तो बड़ा कुछ नहीं है, खाली माइनस में. खत्म. अभी सिक्योर्ड लोन है, उसको एज इट इज लिख लो. सिक्योर्ड लोन उसमें है 12% डिबेंचर्स of 100 each as it is, which is 5 lakhs. अभी आपका एक्चुअल बैलेंस शीट शेयर कैपिटल is 12,05,000 मिला. रिजर्व्स are 1,95,000 and non-current liabilities that you have long-term borrowings. Long-term borrowings. The secured loan is nothing but long-term borrowings. It is the same thing. Secured loan is long-term borrowings. This is 5 lakhs. Secured loan is long-term borrowings. बैंक दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया. जो भी क्वेश्चन में दिया उतना ही आइटम्स लिखना. एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट लिख देना ऊपर. एक्सट्रैक्ट का मतलब पूरा बैलेंस शीट नहीं है, इट इज जस्ट अ पार्ट. जो क्वेश्चन में दिया है उतना ही छापने का है. इज दिस क्लियर? जितना क्वेश्चन में उतना ही छापो. गॉट इट? मिला? कैसे करना है क्या दिमाग में? नहीं टैली नहीं होगा. ये टैली होने वाला नहीं है. क्यों टैली नहीं होगा? एसेट नहीं है, पॉसिबल ही नहीं. इन्फो इतना ही दिया है, जितना इन्फो दिया उतना ही बनाने का. हाँ खाली लायबिलिटी लिख के छोड़, इधर ही खत्म हो जाएगा. टोटल वोटल करने की भी जरूरत नहीं. हैंगिंग रहेगा ये बैलेंस. अभी अगर जिन्होंने जनरल रिजर्व लिया है वो लोग क्या करेंगे? इधर जनरल रिजर्व को नहीं करेंगे और पीएनएल में लिख देंगे. क्या दिमाग में? पीएनएल लिया तो पीएनएल में से नहीं करो, जनरल रिजर्व में. एक एक्सट्रैक्ट मैंने होमवर्क दिया आपको. बाकी अभी नेक्स्ट क्लास एक्सट्रैक्ट खत्म. नेक्स्ट क्लास आई एम स्टार्टिंग विद आरटीपीज एंड एमटीपी एंड थ्योरी. बैलेंस शीट भी करेंगे बचे हुए. बैलेंस शीट बचे हुए खत्म करेंगे. आरटीपीज एंड एमटीपी सब 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 पूरा पहले स्टार्ट किया तो वो रिवाइज करके आए इसके. सब रिवाइज करके आना ही है. हाँ कौन सा साल का लेटेस्ट एमटीपी आरटीपी है 2026 का. सर आपका दूसरा लेक्चर क्या? आपका दूसरा लेक्चर हाँ कल से सेकंड चलो होमवर्क के लिए एक एक्सट्रैक्ट करके आओ. ऑल क्वेश्चंस विल बी सॉल्विंग टुगेदर. ओके ऑल. इधर टोटल हाँ, good. उधर रिजर्व्स के नीचे